So in the last class we were talking about the synchronous motor. We have did the construction, working principle of synchronous motor, and also the equivalent circuit diagram. Then we have also explained about the different conditions where the motor is operating either in unity power factor condition, leading or lagging. Okay, and we have made certain conclusion. What was that conclusion? That in synchronous motor, E always lag behind the terminal voltage by an angle of delta, while in case of generator, what was there? E always, the excitation voltage always lead the terminal voltage. So reverse phenomena is going on. Okay, and this is also, this delta is also the angle between the main field flux and the resultant field flux, and same we have presented through the diagram. This is the diagram. Okay, this is the normal diagram of lagging power factor. Okay, this is the diagram of this is the field flux. To this I added the armature flux, and we got a resultant flux, and the angle between the main field flux and the resultant flux is also known as the torque angle, that is the delta. So this is another conclusion we have drawn. Now next come we have also gone through the torque characteristics. Now being a motor, in motor we are always interested in torque speed characteristics. Okay, so first of all, how to find out the torque? From physics we know that torque is defined by power divided by three-phase power divided by the angular speed. Okay, and three-phase power is being given as what? The same power, that is, if we neglect the resistance, then three-phase power is given what? If we neglect the resistance, then three-phase power is given what? Power single phase per phase is given as Vt E sin delta upon Xs. If we neglect, Ra is assumed to be 0. Do you agree or not? Okay. Now, if it is a three-phase power, P three-phase, what will happen? This whole will multiply by 3. So here we are writing the three-phase power, thrice EVT into sin delta upon Xs, and divided by also the angular speed omega s. Now omega s is nothing but the synchronous angular speed, is also given as 2 pi f. Is it clear? And f can also be written as 2 pi ns by 60, where ns is what? The synchronous speed. So the same thing we have written it, and ultimately we got that torque is nothing but these all are constant. Then E is constant, Vt is constant, omega is also, Xs is constant, then T is equal to 2 max sine delta. And if you plot a graph between delta and torque, you will get an sine curve. Okay, so initially as the delta is increased, the torque will increase and reach to maximum value, and then it started decreasing. Is it clear? So a steady state limit is also there for the synchronous motor regarding the torque. Now generally for motors we are interested in torque speed characteristics. But here we know that speed remain constant, synchronous speed, hence you will get a straight line. Okay, generally it is not written in books torque speed characteristic synchronous motor, but you may be asked, then you know that synchronous speed remain constant, hence it will always be constant, means a horizontal line irrespective of the whatever the angle is. Now next, again power factor control. Now this is very important. Okay, we have already did this. Okay, in case of the synchronous generator, we have taken the 3 cases. You know what are that? Over excitation, normal excitation, and under excitation. Now as I have told you that whatever there is in generator is just reverse of मोटर में, उसका जस्ट रिवर्स होता है. रहते 3 कंडीशन वही है. जैसे आप जनरेटर का याद करो, जनरेटर में ओवर एक्साइटेशन हो गया तो मैंने उसको समझने के लिए क्या बताया था कि ओवर एक्साइटेशन मतलब फील्ड का, एक्साइटेशन मींस फील्ड, एक्साइटेशन मींस फील्ड ज्यादा हो गया तो जो उसको नॉर्मल चाहिए था उसका तो उसने वीटी बना दिया. अब एक्सेस का क्या करे, तो एक्सेस की उसने रिएक्टिव पावर जनरेट की और वो देगा, इट विल डिलीवर द reactive power, hence it will be opting at a lagging power factor. This is clear or not? So in overexcited synchronous generator operate at a lagging power factor, and
it delivers the reactive power. दूसरा normal excitation, the E will balance the VT, okay, and it will operate at the excitation will be just sufficient to produce the necessary flux to have a terminal voltage VT. So this is called a normal excitation. So it will operate at which condition? Unity power factor. Third case, under excited, field इतना कम था कि VT नहीं बना, तो उसने क्या किया, बाहर से ड्रॉ किया, अरे भाई मेरा VT तो बनने दो. So it will draw the reactive power. Hence when drawing the reactive power means it operates at a lagging power factor. ये किसके लिए था? सिंक्रोनस जनरेटर के लिए. अब इसका जस्ट रिवर्स आप देख लीजिए, ठीक है. तो आप ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, ये भी क्लियर है आपके. It is operating at suppose lagging power factor. The synchronous motor is operating at a lagging power factor. So what will happen? If this is V, this is IA, lag by an angle of phi, lag by angle of phi. अब इसमें हमारे इक्वेशन क्या होती है, अगर इसके अकॉर्डिंग चले, then we have to add what? अब इसमें देखिए, वैसे ही समझ लिए कि यदि मैं इसमें IA एक्सेस ड्रॉ करता, ठीक है, तो IA एक्सेस इधर है, तो ये किधर होता, इधर होता, और फिर उसके बाद 90 डिग्री एंगल होता. लेकिन मैंने RA को नेग्लेक्ट कर दिया, तो सीधा यहां से एक 90 डिग्री मैंने खींच दिया IA एक्सेस. क्लियर और नॉट? एंड दिस इज बैलेंसिंग व्हाट? E. बैलेंसिंग व्हाट? E. एंड E इज लैगिंग बाय एंगल ऑफ. ये हमने ऑलरेडी देख चुके, लेकिन आगे हम इसका क्या काम में है, लेट अस सी. Now we have to, the formulas are same as that of the so what we are doing, let us keep the real power supply to the motor constant and change the excitation. अब हम मोटर में क्या कर रहे हैं, देखो वहां समझना आप पूरी. जनरेटर में एक लोड था, जनरेटर में क्या था, तो क्या यूज करता था, कीपिंग लोड कांस्टेंट, मींस द लोड रिएक्टिव पावर इज केप्ट कांस्टेंट. अब यहां क्या कर रहे हैं हम, मोटर में क्या दे रहे हैं, 3 फेज पावर दे रहे हैं, लेकिन हम उस 3 फेज पावर का जो रियल पावर है, रियल पावर सप्लाइड, उसको हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट. ठीक है, चेंज इतना ही है समझने का कि उसमें क्या है, डिलीवर कर रहे हैं किसको, लोड को, और लोड को हम मान के चल रहे हैं उसका एक्टिव पावर हमने कांस्टेंट रखा और फिर डिराइवेशन किया था. यहां क्या कर रहे हैं हम, यहां हम वी आर डिलीवरिंग inside the motor to the motor the real power, and we are keeping that part to be constant. That is, what is power in case of motor also? वही जनरेटर वाला फॉर्मूला, EVT sin delta upon XS, assuming RA to be negligible or 0. Okay, now this has to be balanced what? ये मोटर को चाहिए, ये मोटर को चाहिए. अब ध्यान रखना, उस समय क्या करता था, ये डिलीवर करता था जनरेटर. अब इसमें क्या चाहिए, मोटर को चाहिए, और देगा कौन, बाहर से VT IA cos phi. Is it clear? And this is kept to what? Your constant. This is kept or constant. Now what happens if this is kept constant and we keep on changing the excitation? We keep on changing the excitation. तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा, if IF is varied. एक्साइटेशन को वेरी करने का क्या मतलब हुआ, फील्ड करंट को वेरी करना. फील्ड करंट का लगा होता है, फील्ड वाइंडिंग कहां होती है, रोटर पे, और उसको कौन सी सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई. दैट शुड बी क्लियर इन माइंड. सो इफ IF इज वेरीड, EF विल वेरी. अब ये EF लीनियरली वेरी करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका जो फ्लक्स है वो अनसैचुरेटेड रीजन में. अगर सैचुरेटेड में हो गया तो चाहे कितने EF वेरी करो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. लेकिन अगर आपने लीनियर पोर्शन में वर्क किया, मींस यू नो दैट this is the BH curve. If your flux is operating in this region, then if you vary the field current, the excitation will also vary linearly. Now if you are operating in this region, okay, you keep on varying IF, E will always remain constant. Okay, so here is that magnetic flux is assumed linearly. Now since real power is constant, the real power is constant. अब देखिए, ये constant है, ये VT भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है. ठीक है, तो अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल दें, E sin डेल्टा इज इक्वल, ये भी कांस्टेंट है, एक्सेस भी, देखो अब इसको इक्वेशन को समझो, ये पूरा कांस्टेंट है, एक्सेस कांस्टेंट है,
VT कांस्टेंट है, तो अब आपके पास क्या चीज वेरिएबल आई, ई साइन डेल्टा। चूंकि पूरा कांस्टेंट है तो ई साइन डेल्टा कांस्टेंट होना चाहिए। इज इट क्लियर? लेकिन ई वेरी कर रहे हैं हम, ई को हम वेरी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ साइन डेल्टा भी वेरी होना चाहिए, ताकि हमारा ई साइन डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इज इट क्लियर? सो ई साइन डेल्टा रिमेन शुड रिमेन कांस्टेंट। ये तो इस साइड हो गया, ठीक है। इधर VT कांस्टेंट है और ये पूरा कांस्टेंट है, तो जो IA cos फाई है ये भी इस प्रकार चेंज होना चाहिए कि हमारा VT तो कांस्टेंट है ये, तो IA cos फाई भी कांस्टेंट रहना चाहिए। So to conclusion we are finding again same as that of the generator, that E sin delta is to be constant and IA sin cos phi is to be constant, in which case when the giving power to the motor is remain constant, that is real or active power remain constant। अरे समझ में आया कि नहीं ये कंक्लूजन? आगे इस कंक्लूजन से हम उसका, तो देखिए ये आया हमारे पास, इसने फिगर समझा दिया है कि दिस E sin delta whether you vary IA1, IA2 or IA3, is it clear? The E sin delta will always remain constant, and the second factor, this IA cos phi is also remain constant, explained through phasor diagram। Clear? तो अब हमारे पास तीन कंडीशन की हम बात करेंगे, और वही कौन सी? ओवर एक्साइटेशन, क्योंकि हम इसमें क्या वेरी कर रहे हैं? एक्साइटेशन। क्या वेरी कर रहे हैं? एक्साइटेशन वेरी कर रहे हैं, और हमने मैथमेटिकली कंक्लूजन निकाला कि अगर एक्टिव पावर कांस्टेंट है, देने वाली एक्टिव पावर which is giving to the motor, if remain constant then E sin delta will always remain constant। लेकिन E को तो हम वेरी कर रहे हैं, E को हम क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं, तो कौन चेंज होगा? डेल्टा। कौन चेंज होगा? साइन डेल्टा इस प्रकार चेंज होगा कि E sin delta, E1 sin 1 delta 1 is equal to E2 sin delta 2 is equal to E3 sin delta 3। Is it clear or not? ठीक है। अब है ना, एक्साइटेशन को वेरी किया तो एक्साइटेशन तीन तरह से वेरी कर सकता है, नॉर्मल, ओवर एंड अंडर। ओवर, नॉर्मल एंड under, and I will already given you hint that you will observe the reverse characteristics of the generator। over excitation में generator क्या था? lagging। क्या था? lagging, operating at a lagging power factor and delivering the reactive power। अब इस केस में क्या होगा? E cos delta is greater than, E cos delta will be greater than VT, and therefore synchronous motor will draw leading current and supplies reactive power। Is it clear? कौन सा, किस कंडीशन में होगा वो? लीडिंग पावर फैक्टर। किस फॉर्म में होगा? लीडिंग पावर फैक्टर। सेकंड, नॉर्मल एक्साइटेशन, दैट इज E। देखिए वो कांस्टेंट है, E sin डेल्टा कांस्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा काम कौन करेगा? ये E cos डेल्टा। E cos डेल्टा विल बी इक्वल टू VT, so it will be which power factor? Unity power factor, and no current, no reactive power is given or taken। थर्ड केस क्या आएगा? अंडर एक्साइटेशन। क्या आएगा? अंडर एक्साइटेशन, that is E cos star delta will be less than VT, so motor draws lagging current and draws reactive power। अरे समझ में आया कि नहीं? और ये जो फिनोमिना है, ये जो मोटर का ये ऑपरेशन है, ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन एंड नॉर्मल एक्साइटेशन, इज द मोटर इज गिवन द नेम सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर। और जहां जहां कहीं पहले ये यूज होता था, आजकल तो बड़ा महंगा है, आजकल तो हम सीधा कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं, लेकिन पहले ये यूज होता था जहां जहां रिएक्टिव पावर की जरूरत है या लेने की जरूरत है, कई बार ड्रॉ करने की जरूरत है और कई बार वापस लेने, इन ऑर्डर टू मेंटेन द पावर फैक्टर। दिस मशीन सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिएक्टिव पावर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? Thus again the V curves, again the V curves, the minimum point is the normal excitation। V curve is plot between आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट। ये ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार हम क्या कहते, कई बार बड़ी बड़ी चीजें जानते हैं, छोटी भूल जाते हैं। अरे यार आई को नीचे लिख दिया, आई को नीचे लिख दिया, आई एफ को ऊपर लिख दिया।
nahi, it is a plot between field current and IA. That is, as the field current is vary, what happens to the armature current? So what you do, if you increase the field current, okay, what will happen? The armature current will decrease and it will be minimum at unity power factor, and thereby if you increase, it will goes on increasing, and below unity power factor, it is which in the what mode? Under excitation, while the generator was in over excitation. Okay, and what is the power factor here? Lagging. While above the over excitation, above the normal excitation, it is in the over excitation. And what is the power factor? Leading power, just reverse of the generator. Is it clear? So be careful. If you've been asked V curve for synchronous motor, you will draw. V curve for generator, you have to draw that one. And it can be generalized also. Write short note on V curves. Write short note on V curves. Then you will surprise what is V curves. Then you have to explain both. The V curves are a plot between the field current and the armature current for both motor and generator. And as the field current is vary, the machine, synchronous machine, can be either over excited condition or normal excitation or under excitation. And synchronous generator under over excitation, it will be operating at which point? Under generator, synchronous motor under over excitation, what will you operate? तो इस प्रकार और दोनों ग्राफ बना दो. And I have already told you, a picture is 10,000 powerful than a words. So डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मान लो बहुत कम समय मिला है तो आप केवल डायग्राम बना दो, इट विल गिव विथ लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. Now I have already told you that this behavior of the motor is being termed as a synchronous condenser, which is used to keep the power factor constant, that is unity. Is it clear? जैसे कल हमने सब स्टेशन देखा था तो वहां पे ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ था, उसमें कैपेसिटर बैंक है. Is it clear? So as it observe the bus bar power factor and accordingly set the capacitor so that it can maintain up to unity power factor. ये आपको घरों में भी रखना चाहिए. कॉमर्शियल के लिए तो कंपलसरी है, एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल के लिए तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है, वरना क्या लगती है? पेनल्टी. क्या लगती है? पेनल्टी. बट in our domestic it is not being compulsory. However, we can have, but it will be a costly item. You have to brought in another, क्योंकि ultimately आपको reactive power तो supply करनी है. क्यों करनी है? Why you have to provide reactive power? Because your most of the load, either this camera or this fan or this tube light, are resistive inductive load. Are resistive. Even the electronic devices contain the capacitive load also. कैपेसिटर नहीं लगा होता, तो उनको रिएक्टिव पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्लक्स कैसे बनेगा? आज ये मोटर कैसे घूम रही है? As I ask you, on what principle this motor is based, what you will say? Electromagnetic induction principle. So electrically also there and magnetically also there. So magnetic means flux is to be produced, और फ्लक्स के लिए क्या चाहिए? रिएक्टिव पावर. तो रिएक्टिव पावर मस्ट है. मगर जो यूटिलिटी वाले हैं, जो हमें बिजली दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि साहब आप अपनी जो ऊर्जा है जो हम दे रहे हैं, बिजली और जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उसको किस में खर्च करो? इसको खर्च करो एक्टिव पावर में. और इसके भैया मैं रिएक्टिव पावर देंगे, हम मानते हैं रिएक्टिव, आप इसके लिए एक्सटर्नल कोई सोर्स लगाओ जो बहुत कम होता है, उसके लिए आप लगा सकते हो. समझ में आया कि नहीं है? So by varying the excitation, we can have the different modes. Now this is being, let us take the next. So this is very clear. Now
An overexcited machine will what will do? Now when I say unloaded synchronous machine means I'm talking about the generator. I'm taking both the thing. I'm talking about the generator. An overexcited generator will supply the pure lagging current and thereby draw a pure लीडिंग करंट. ये किसके लिए, ब्रैकेट में किसके लिए, मोटर के लिए. देखो दोनों चीज लिख दी है, ठीक है. एंड अंडर एक्साइटेड अनलोडेड सिंक्रोनस या सिंक्रोनस मशीन मींस जनरेटर. ब्रैकेट में किसका लिख रहे हैं, मोटर का. जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, द सेम थिंग विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ सम फैक्ट्स. Okay, some facts about the synchronous machine. What are that? Where synchronous machine is not transferring any real power. Transferring means it is acting as a generator. Transfer, भाई मोटर तो क्या करती है, लेती है. ट्रांसफर कौन करता है, जनरेटर करता है, ठीक है. तो when it is not transferring any real power, its power factor is 0 means either purely inductive और purely capacitive. और चूंकि उसमें इंडक्टेंस होता है तो प्योरली इंडक्टिव, ठीक है. अब देख लो ना, केवल एक्सेस आरए को हमने नेग्लिजिबल कर दिया, पीछे क्या बचा, इक्विवेलेंट सर्किट को याद करो. इक्विवेलेंट सर्किट ओपन है मान लो, ठीक, कोई लोड नहीं लगाया. इज इट क्लियर? तो उसमें क्या एलिमेंट है, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट, सिर्फ एक्सेस. क्या है, एक्सेस. तो अब उसका पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग. कौन सा पावर फैक्टर क्या होगा, वो तो उसका कि इस लैगिंग होगा. पावर फैक्टर कितना होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट का कितना होता है, 0. और 0 फिर कौन सा नहीं, आगे लैगिंग. द स्टेटर करंट आइदर लीड्स और लैग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. इज इट क्लियर? अगर मान लो कैपेसिटिव निकल जाता है तो लीड करेगा और इंडक्टिव है तो लैग करेगा. एंड इफ इट इज नॉट लोडेड, can you change the magnitude of the can you change the stator current? Yes, we can change it by the help of whom, excitation, by the field current, and thus it behaves like a variable capacitor or inductor. Behaves a variable capacitor or inductor. अरे समझ में आया कि नहीं आया? An unloaded synchronous machine is called synchronous condenser and is used to improve the power factor of the system. भाई ये एक तो अनलोडेड होती है, मतलब मशीन पे कोई भी लोड नहीं लगता है, आइदर एज अ मोटर और अ जनरेटर. तो ये क्या करेगी अल्टीमेटली, इसका फील्ड वेरी करेंगे तो ये 3 फॉर्म में वेरी करेगी, ओवर, अंडर और नॉर्मल, लीडिंग, लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर. तो जिसकी जैसी जरूरत है हम उस अकॉर्डिंग उस मशीन को रन कर देंगे. You got my point? And this machine is called synchronous condenser. You got my point? So let us take a numerical of a motor. This is the same numerical, okay, with slight change as we have done for the synchronous generator. A 3-phase, what is written? 10 kVA, 50 Hz synchronous machine has synchronous neglect. The machine is operating as a motor. अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ किया है इसने, कि इसने मोटर की हमेशा रेटिंग किस में होगी, किलोवाट में, मगर इसने बाद में मेंशन किया कि ये क्या है, मोटर है. और मोटर 400 वॉट्स बाद द फील्ड एक्साइटेड सो दैट पावर फैक्टर इज यूनिटी व्हेन द मशीन ड्रॉस 6 किलोवाट. पावर, फिर इसने कहा कि ये जो मोटर है ये ऑपरेट करती है कितने वाट पर, 6 किलोवाट. और पावर फैक्टर क्या है, फिर आप यही चीजें निकाले, डिटरमाइन द एक्साइटेशन, ईएमएफ, टॉर्क एंगल, ड्रॉ द इफ द फील्ड एक्साइटेशन हेल्ड कांस्टेंट, शाफ्ट लोड. चलो पहले एक फर्स्ट लेते हैं. पहला क्या कह रहा है, निकालना क्या है, उसी को ई को निकालना है. क्या निकालना है, ई को. अब ई को कैसे निकालेंगे बताओ. हमें मालूम है कि मोटर कितने पे ऑपरेट कर रही है, motor is operating at 6 kilowatt. Means this is the 3-phase power. This is your 3-phase power. So मैंने क्या कहा, सबसे पहले डेटा लिखिए. पावर फैक्टर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है. तो क्या हम इससे आईए निकाल सकते हैं, क्या हम आईए निकाल सकते हैं?
मोटर का आउटपुट क्या होगा बताइए? ये थ्री फेज पावर है, मैंने बताया था थ्री फेज पावर को कैसे लिखते हैं। किसी भी थ्री फेज पावर को √3 VT, अब ये आइए cos फाइव, P3 दिया हुआ कितना 6 इंटू 10⁻3, √3 कांस्टेंट, VT कितना होगा? अब ये देखिए लाइन वोल्टेज ले रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना आप। आई एम टेकिंग टोटल थ्री फेज वोल्टेज, therefore I have to take the लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज कितना है? 400 वोल्ट। कितना है? 400। आइए मालूम है? नहीं मालूम है। cos फाइव मालूम है? 1। नाउ कैन यू कैलकुलेट? आइए, यस यस कैलकुलेट। हाउ मच इट कम्स आउट टू बी? 8.66। Is it clear? Now what he has been our excitation voltage. We know that it is, now you have assumed RA to be, so excitation voltage EF will be nothing but VT phasor minus J IA XS। VT रेफरेंस वोल्टेज कितना? अब देखिए ध्यान रखना, फिर गड़बड़ करोगे तो फिर गड़बड़ करोगे। हमने माना है कि हम ये जो वोल्टेज और करंट और जो सारे एनालिसिस करते हैं, ये हम क्या करते हैं? पर फेज। क्या करते हैं? पर फेज। तो यहां पर VT 400 वोल्ट क्या था? लाइन टू लाइन, और स्टार कनेक्टेड है तो पर फेज कितना हो जाएगा? 231। और एंगल इसका क्या मानते हैं? हमेशा 0, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, 0 डिग्री। J का मतलब 1 एंगल 90 डिग्री। आइए अभी हमने निकाला कितना, कितना आया? 8 पॉइंट, लेकिन आइए फेजर है 8.66, एंगल कितना होगा? पावर फैक्टर इज यूनिटी, सो cos इनवर्स यूनिटी इज 0, सो इट विल बी 0। एक्सेस कितना दिया हुआ है? 16। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट हाउ मच रिजल्ट? यू विल गेट द रिजल्ट 269.37 एंगल माइनस 30.96। तो ये क्लियर हो गया। टर्मिनल वोल्टेज से क्या कर रहा है? लैग। ई क्या कर रहा है? लैग। एंड दिस इज ऑल्सो योर फेज वैल्यू, माइंड इट। सो अगर इसको थ्री फेज रिप्रेजेंट करना है तो मल्टीप्लाई बाय √3, मल्टीप्लाई बाय √3, because we have all converted into phase. So suppose it comes out to be how much? It is given 269.37 angle minus 30.96 degree volt. Okay, so I want to convert into line values. Okay, so line value will be equal to how much? √3 multiplied by 269.37 angle minus 30.96. This is EF line. Is this clear or not? Okay, so now next is question is what? So diagram is also very clear. Okay, just you have to draw it. If the field excitation is held constant, field excitation मतलब E को हमने क्या रखा? Constant, ठीक है। And the shaft load is suddenly increased. भाई मोटर है, ये किस ऑपरेट में कर रही है? Is suddenly increased. Determine the maximum torque that the motor can deliver. ठीक है, अब मैक्सिमम टॉर्क मोटर कितना डिलीवर कर सकती है, तो बताइए कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आप मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे। मैक्सिमम टॉर्क में पहले मैक्सिमम पावर निकालिए। क्या निकालिए? मैक्सिमम पावर। वही मैंने बताया था, टॉर्क और डेल्टा का मैंने प्लॉट किया था। कितना था? क्या था? EF VT अपॉन एक्सेस इनटू साइन डेल्टा। नाउ व्हेन विल बी टॉर्क मैक्सिमम? अरे बताइए, योर टॉर्क इज गिवन व्हाट? E VT upon XS sin delta in case of motor also. So when delta will be equal to how much? 90 degree. You will get the maximum torque. Is it not? So calculate, or maximum power also. This is not maximum torque, this is P.
दिस इज योर पी। टॉर्क के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, डिवाइडेड बाय ओमेगा, दिस इज पी। तो पी मैक्स कितना हो गया, 3 फेज, दिस इज पर फेज, सो पर फेज की तो पी 3 फेज कितना हो जाएगा, 3 अपॉन एक्सएस इंटू। देखिए ये कंफ्यूज मत होना कब √3 लगाना है कब क्या। अगर पर फेज कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो और फिर आपसे पूछे 3 फेज तो मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन अगर लाइन वोल्टेज और लाइन करंट इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या होगा, √3 VT IL cos phi। अब ये 3 फेज हमने निकाल दिया, 3 इंटू, चूंकि ये सारी पर फेज वैल्यू है, ये कितना निकला 269.3, VT कितना है 231, ये कितना है 16, और क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन डेल्टा कितना होगा 1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई 11.67 क्या किलोवाट। ठीक है, नाउ दिस इज द मैक्सिमम पावर, वही पूछी थी उसने, हाउ मच मैक्सिमम टॉर्क पूछा था उसने, क्या पूछा था टॉर्क, तो पावर डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, वो कितनी होगी 11.67 into 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई f और 2 पाई ns बाय 60, ns दी हुई थी 1500 आरपीएम दी थी, तो डिवाइडेड बाय 60 यू विल गेट द यूनिट ऑफ टॉर्क इज नथिंग बट न्यूटन मीटर। सो दिस इज द, देखिए चीजें इतनी आसान है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप चीजों को समझोगे नहीं, देन यू विल नॉट एबल टू डू इट। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितना न्यूमेरिकल करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब ये सारी चीजें है ना, अब आपको न्यूमेरिकल समझ, ये सब डिजाइन में काम आती है, क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि मोटर को ऐसे ही बना दिया। तो डिजाइन में हमको दिया कि भाई मुझे है ना एक 10 किलोवाट की सिंक्रोनस मोटर बनानी है, कितने वाट की 10 किलोवाट की। ठीक है, तो अब 10 किलोवाट को वो सबसे पहले निकालेगा कि है ना मैं ऐसी वाइंडिंग चूज करूं जो इसका करंट झेल सके और उसका इंसुलेशन लेवल भी इतना, वो वोल्टेज को भी झेल सके। तो वो एरिया ऑफ, पहले करंट निकालेगा उस 10 किलोवाट से, उसको कितना वोल्टेज देना है, मान लो आपने कहा 3 फेज 400 वोल्ट देना है, तो उससे P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi, और मान के चलेगा सपोज यूनिटी पावर फैक्टर पे या मिनिमम पे ऑपरेट कर रही है या मैक्सिमम पे ऑपरेट कर रही है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग IA निकालेगा। अब इस IA के कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या निकालेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, विच कंडक्टर इज टू बी चोजन। इज इट क्लियर? अब उसने वो निकाल दिया, पावर इतनी है। ठीक है, वो फिर निकालेगा कि इसकी स्टेडी स्टेट लिमिट कितनी है, स्टेडी स्टेट लिमिट तो उसका टॉर्क कितना है, तो टॉर्क निकालेंगे, उसको चाहिए एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड वो इसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, तो सिंक्रोनस स्पीड का किससे डिसाइड होती है, नंबर ऑफ पोल्स, ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p, f तो फिक्स है, तो आप किससे डिसाइड हुई, पोल्स। अब आपको क्या हाई स्पीड चाहिए या मीडियम स्पीड या लो स्पीड चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आपको पोल्स को अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़े। तो कस्टमर से जो है आपका, वो आपको सब देगा, मुझे लो स्पीड चाहिए, इतनी पावर की चाहिए, ये चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप ये जो फॉर्मूले हैं वो सब डिजाइनिंग में काम आएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं है?